हेलो स्टूडेंट्स, मैं BL शर्मा, मैथ्स। हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th NCERT मैथ से डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये चैप्टर को शुरू करने के लिए जो एक्सरसाइज 7.1 है उसमें इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस फॉर्मूला को हम डिराइव भी करेंगे। देखिए, उसके लिए हमें कुछ बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ेगी जो हमने अपने 9th क्लास में देखा होगा। मैं ब्रीफली इसको रिवाइज कर देता हूँ। पूरे चैप्टर के लिए आपको इस बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोऑर्डिनेट प्लेन और a Cartesian plane. If we take two number lines, one horizontal and one vertical, and then combine them in such a way that they intersect each other at 90 degree, they form a Cartesian plane. स्टूडेंट देखिए, ये एक लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये भी एक लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। अगर ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, इफ द टू लाइन फॉर्म 90 डिग्री और टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन they form a Cartesian plane. So basic thing is, the important thing is the angle between them should be 90 degree. ये लाइन है आपका, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन आपका वर्टिकल लाइन है, राइट? Then next, this horizontal line, this line is called or said to be x-axis. The horizontal number line is called the x-axis. So here this number line is x-axis. And the vertical number line is called the y-axis. ये vertical number line है, ये हमारी y-axis है। स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखते हैं x, then we go left, then we go left hand side. This is x dash. It means हम x को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, and this is y, and then this side we write y dash. ये हमारा पॉजिटिव ऑफ x है और ये पॉजिटिव ऑफ y है, और ये यहाँ से जीरो से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, मीन्स ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, दैट इज नेगेटिव ऑफ x एंड दैट इज नेगेटिव ऑफ y. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन. दिस इज x एक्सिस, मींस हॉरिजॉन्टल लाइन इज x एक्सिस, दिस वर्टिकल लाइन इज y एक्सिस. यहाँ पे जिस पॉइंट पे वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, कट करते हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल O. इसको कैपिटल लेटर O से हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो आई थिंक इट इज क्लियर. दिस इज x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज y एक्सिस वर्टिकल लाइन, and the angle between these two is 90 degree, and this point is origin. Then quadrant, yes, horizontal line and vertical line, when they are perpendicular to each other, they divide the whole plane in 4 parts. ये horizontal line means x axis and ये vertical line means y axis किसी भी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देती है. This part is first, that is quadrant. Quadrant का मीनिंग होता है 1/4 part. So that is first quadrant, then this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. स्टूडेंट ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है, यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, then this is second quadrant, and this is third quadrant, and this is fourth quadrant, right? And then see the sign of the sign of quadrant. Here see, this is positive. What is first quadrant? Actually first quadrant, this is first quadrant, this is first quadrant. This first quadrant is bounded by positive of x and positive of y. So what is x here? X is positive, y is also positive in first quadrant. This is second quadrant. Second quadrant,
is bounded by negative of x. देखिए नेगेटिव -1, -2, -3, -4, -5 है, तो ये नेगेटिव ऑफ x मीन्स x इज नेगेटिव and positive of y, that is it means y, x will be negative, y will be positive in second quadrant. And this is third quadrant. Third quadrant is bounded by these two lines, that is negative of x and negative of y. See, this is negative of x and negative of y. So in third quadrant, x will be negative and y will also be negative. In this fourth quadrant is bounded by positive of x and negative of y. That is positive of x and negative of y. So x will be positive and y will be नेगेटिव. ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया कि कैसे पता करें कि x कहाँ पॉजिटिव होगा और y कहाँ नेगेटिव होगा. x को हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट और y को कहते हैं y कोऑर्डिनेट. स्टूडेंट, x को हम x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं. देखिए ये रहा आपका. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x इज पॉजिटिव and in fourth quadrant x is also positive because this is positive. In second quadrant x is negative and x is negative in second quadrant. जब हम लिखते हैं तो पहले हम लिखने का ये हुआ कि x को हम पहले लिखते हैं और उसके बाद में हम y लिखते हैं. This is the way of writing. We write in the ordered pair, x comes first and then comes y. So in second quadrant x is negative and x is negative in third quadrant also. आप देखेंगे कि इस y एक्सिस के मींस वर्टिकल लाइन की राइट एंड की तरफ, दाहिनी तरफ, इस तरफ x हमेशा ही पॉजिटिव है. से दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. एंड इस वर्टिकल लाइन मींस y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो दैट विल बी नेगेटिव. सो हियर सी x is negative, x is negative. Similarly, ये x एक्सिस है मींस हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके अबाव ऊपर की तरफ अपवर्ड जाएंगे तो y हमेशा पॉजिटिव होगा. देखिए दिस इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव. अगर इसी तरह से x एक्सिस के नीचे की तरफ जाएंगे तो y का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगा. ओके, we already have discussed and now very important thing is now what is x and what is y. यहाँ हम बहुत से स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि x क्या है और y क्या है. देखिए इसको समझ लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाली चीज है. What is x actually? X coordinate is also said to be abscissa. X coordinate को हम abscissa भी कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं. और जब ये दोनों एक साथ लिखते हैं, when we write both together, that is said to be the coordinate. कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x coordinate and y coordinate together. Otherwise, x coordinate only abscissa, y coordinate only, that is ordinate. Then what is x and what is x coordinate and what is the value of x coordinate and what is the value of y coordinate? That is very very important. देखिए ये हमारा कोई हमने एक पॉइंट लिया है. लेट दिस पॉइंट इज a. इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत सिंपल भी है. लेट दिस पॉइंट इज a. ओके, ये हमने पहले लिखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ a इज 6,4. एक्चुअली व्हाट इज 6? x कोऑर्डिनेट एट द वैल्यू ऑफ x इज 6. कैसे? यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए. देखिए ये कितना, here to here it is 6. And when you draw perpendicular here to here, that is also 6. That is also 6. That is 6. That is 6. So actually x means, x coordinate means distance of the point from which axis. x का मतलब ये हुआ कि ये जो y axis है उससे कितना डिस्टेंस है. आप साइन कन्वेंशन साइन तो कर लेंगे इफ इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. आप ये देखिए. सो व्हाट इज x? x is the distance of the point from y axis. Here point A, the distance of this point from y axis, this is y axis, that is 6. कैसे पता चला? You draw the perpendicular. So since this is 6, so this will also be 6. So this is very important. The perpendicular distance of the point from y-axis is called the x-coordinate or abscissa of that point. Similarly,
the distance of the point from x-axis with this distance, that is what y, and this is what x. X is the distance of the point from y-axis, and y is the distance, this is y distance, that is the distance from x-axis. तो देखिए यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये वाला, ये डिस्टेंस है इक्वल टू दिस 1 2 3 4, तो ये डिस्टेंस भी 4 ही होगा, क्योंकि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो रेक्टेंगल बनता है और द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. सो x means the distance of the point from y-axis. Y means distance of the point, perpendicular distance of the point from x-axis, and this is very, very important and very, very easy. And now we come to the how to write. While writing the coordinate of a point in the coordinate plane, the x coordinate comes first and then the y coordinate. We write the coordinate in brackets. मैं पहले ही आपसे बता चुका हूँ कि जब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे. देखिए हमने x कोऑर्डिनेट पहले लिखा, फिर कोमा यूज किया, फिर y लिखा और दोनों को ब्रैकेट में हमने क्लोज किया. तो ये एब्सिसा you have to write, एब्सिसा means x, you have to write first, फिर कोमा लगाया और फिर आपने y कोऑर्डिनेट लिखा यहाँ पे, राइट? ओके. And now, what are the coordinate of the origin? ये बहुत समझना जरूरी है कि origin का coordinate क्या होता है. हमने डिस्कस किया आपसे कि x का मीनिंग क्या होगा. x coordinate का मीनिंग ये होता है, x coordinate means distance from y-axis. When I say distance means perpendicular distance, and y coordinate means distance of the point from x-axis. देखिए ये पॉइंट है, ये हमारा ओरिजिन है, दिस पॉइंट इज ओरिजिन. ये ओरिजिन देखिए यहां से, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो y से इसका कोई डिस्टेंस नहीं है. दिस पॉइंट origin is lying on y-axis, so there is no distance, or you can say zero distance. That is why we can say that is zero here. Similarly, क्योंकि ये पॉइंट, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है. जब एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस भी कितना होगा, 0 होगा. दैट इज व्हाई द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0, 0. अब देखिए इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है. दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस. देखिए एक्स एक्सिस पे है. सो व्हाट इज एक्स? X is the distance of the point from y-axis. देखिए ये y-axis है और इसका डिस्टेंस कितना है y-axis से, 1 2 and 3. So I can write here 3. y के लिए क्या लिखें, what is y? Y is the distance of the point from x-axis. So स्टूडेंट, क्योंकि ये पॉइंट है ये x-axis पे ही लाई करता है तो उस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से 0 ही हुआ. तो व्हाट इज दिस, 3, 0. सिमिलरली व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, 2, 0. सिमिलरली व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, -2, 0. आपने गौर से देखिए, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली, x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है. नॉट इट, बहुत जगह जरूरत पड़ेगी. द वैल्यू मीन्स the value of y on x is 0. Here see, ये हमारा y है, 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0. कोई x एक्सिस पे पॉइंट ले लीजिए, इसका x का वैल्यू हमारा 0 ही आएगा. सिमिलरली x की वैल्यू इसमें चेंज हो सकता है, x की वैल्यू चेंज है, ये 3 है, ये 2 है, ये -2 है, लेकिन y का वैल्यू x एक्सिस पे हमेशा ही 0 होएगा. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ x on y axis
on y-axis is 0. You can take the coordinate of this point here. देखिए ये point है, आप लिखेंगे 0,3. This point is 0,2. This point is -1, 0,-1 क्योंकि हम x को पहले लिखते हैं. This point is 0,-2 and this point is 0,-3. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ y एक्सिस पे x का वैल्यू मींस x कोऑर्डिनेट हमेशा ही 0 होता है, और इस कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा लर्न रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड नाउ वी कम टू दी आवर डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको हम डिराइव करना है. देखिए हमें ये गिवन है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये मैं एक्सप्लेन यहाँ पे करने वाला हूँ. आप जब भी आप क्लास में रहें या ये वीडियो देखें, अपने पास में पेन, नोटबुक और पेन हमेशा ही साथ में रखें. थोड़ी देर के बाद जब आपको लगे कि स्पीड ज़्यादा या कम है, तो आप इसको वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा रोक भी सकते हैं, और थोड़ी देर के बाद उसको स्टार्ट आप कर सकते हैं. देखिएगा, it is given the distance between the points x, p, whose coordinate is x1, y1, and the other point q, whose coordinate is x2, y2, is given by this. अगर कोई दो पॉइंट हमें दे रखे हैं, दो पॉइंट गिवन का मतलब है उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये फॉर्मूला से pq is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square से ये इसका आंसर आना चाहिए. और मींस ये हमें प्रूव करना है कि P और Q का बीच का जो डिस्टेंस है वो ये है, while the coordinates of P and Q are given. स्टूडेंट्स इसके लिए क्या करते हैं, देखिए हम शुरू में कि ये हमने एक ग्राफ पेपर लिया और एक P पॉइंट मार्क किया और Q पॉइंट मार्क किया. P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 and Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2. You mark, you take a graph paper with you, draw x axis and y axis. उस पे x एक्सिस और y एक्सिस बनाइए. मींस पहले से अगर आपके पास बना होता हो तो केवल आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए. ओके, दिस पॉइंट इज P, its coordinate is x1 y1. This point is Q, its coordinates are x2 y2. So what you have to write in given की क्या लिखेंगे, points P that with coordinate x1 y1 and point Q with coordinates x2 y2. This is given. देन जैसे आपको पता ही है, सारे प्रोसेस में गिव फिगर होना चाहिए, गिवन लिखना चाहिए, टू प्रूफ लिखना चाहिए, देन कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड, देन प्रूफ आल्सो. ओके, देन वी हैव टू प्रूव that the distance PQ means the distance from P to Q is given by square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Then we go next. देखिए, then we need construction. कंस्ट्रक्शन हमें इसमें करना पड़ेगा. देखिए ये जो Q पॉइंट है, इससे y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए. QB इज परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस. P से भी AP परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, मींस P से y एक्सिस पे ड्रॉ करिए. PA इज परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस. सिमिलरली QS is perpendicular from Q on x axis and PR is perpendicular from P to the x axis. I already have written here. Draw QS perpendicular to x axis. देखिए ये रहा QS. Q से S पे means x axis पे हमने perpendicular draw किया. And PA से PA draw perpendicular from P to y एक्सिस. अब इस P को PA को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिएगा. देखिए यहाँ पे ये QS और AP प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ M पे मिलते हैं. ओके, दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री. दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री. सो नाउ दिस M इज 90 डिग्री. हमें यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा. ये मैंने येलो जो शेडेड कर रखा है, दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड दैट इज triangle PMQ where angle M is 90 degree. इस डिस्टेंस फॉर्मूला को प्रूव करने में हमें पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी. मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. देखिएगा
ये m 90 डिग्री है तो ये पी क्यू हाइपोटेन्यूज हुआ। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेकिन परपेंडिकुलर तो हमारे पास है ही नहीं, सो हमें पहले डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा pm, फिर डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा mq इन टर्म ऑफ x1 y1 एंड x2 y2। सी हियर कैसे करेंगे देखिए। नेक्स्ट सी, यहां देखिए कि देखिए ये BQ है, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट x2। हमें बताया था कि x कोऑर्डिनेट मींस x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। तो ये x2 कौन सा डिस्टेंस है, यहां से ये डिस्टेंस है, ये वाला नहीं है SQ, इट इज नॉट SQ, इट इज BQ। BQ is the distance of point Q, means x2 means this is x2. This point, this is x2. BQ is x2, right? Similarly, here, this point P, its coordinate is given x1 comma y1. What is x1? This distance from A to P, that is x1, right? आप देखिएगा कि यहां से यहां तक BQ is x2 है, तो AM भी x2 हुआ, because AM is equal to BQ, BQ is x2, that is why AM is also x2. So here to here say, जब हमारा ये AM x2 है, because AM is equal to BQ है और AP x1 है, तो ये PM कितना होगा, PM will be x2 minus x1. Yes, see here, this is PM will be x2 minus x1. See here, फिर से कैसे देखिए, AM x2, AP x1, तो PM होगा x2 minus x1. See here, AM is equal to BQ is equal to x2, AP is equal to x1, AP is equal to x1. So we know AP plus PM is equal to AM. AP is x1, AP is x1 plus PM, AM is x2. So PM will be given by x2 minus x1. तो ये PM डिस्टेंस है हमारा, ये x2 minus x1 है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं, इसलिए हमें बेस भी चाहिए और इसलिए हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए। नाउ वी नीड MQ, ये परपेंडिकुलर चाहिए। देखिएगा, what is y is the distance of the point from x axis। तो ये देखिए ये y कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये S2 ये y2 है, ये y2, और यहां से लेके ये देखिए इसका कोऑर्डिनेट p का कोऑर्डिनेट y1 है, तो R2P डिस्टेंस इज y1। MQ कितना हो गया, तो QM और MQ विल बी गिवन बाय, सी हियर, ये हमारा यहां से लेके यहां तक मींस SQ दैट इज y2, SM दैट इज मींस y1। सो QM और MQ विल बी गिवन बाय y2 minus y1। सी हियर, that is MQ is equal to y2 minus y1। अब पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें दो साइड आ चुकी है, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we can write here now, in right triangle PMQ, PQ square is equal to PM square plus MQ square। PM कितना है, that is x2 minus x1 whole square, and what is MQ? MQ is y2 minus y1 whole square, that is y2 minus y1 whole square। But we need only हमें केवल PQ चाहिए, so we can write therefore PQ is equal to, therefore PQ is equal to स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिएगा, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। और हमें यही प्रूव करना है that the distance between the two point PQ is equal to
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिए यही प्रूव करना है हमें, ये रहा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर मींस x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर हमें लेना है। देखिए x कोऑर्डिनेट डिफरेंस स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट डिफरेंस स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट लेना है। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड हेंस प्रूव्ड। ये इस तरह से प्रूव हुआ। स्टूडेंट कई बार इसमें फॉर्मूला में ये भी दिक्कत आती है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी बना देता हूं। हमें पता है कि ए माइन ये हमारा हो चुका है, ए माइनस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज सॉरी ए प्लस सॉरी यस ए माइनस b square can be written as a square minus 2ab plus b square। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं b square minus 2ab plus a square। so you can write b minus a whole square। तो ये जरूरी नहीं कि x2 ही पहले आए, अब मैं इसको और मॉडिफाई कर देता हूं। this can also be written as therefore pq is equal to, you can write x1 minus x2 whole square plus y2 minus y1 whole square। देखिए a minus b whole square can be written as b minus a square। so hence true। thank you student, thank you very much। that's all for this question।